One thing I wanted to make you clear, dear student, once you are thorough with other heads of income, then computation of tax liability is just very simple. But for that thorough knowledge of salary computation, house property computation, which we have learned in entire semester, business profession, capital gain, and other sources, you should know properly. Okay? If so, then only it will be easier. And then after that, it is very simple. After gross total income, we have seen how the deductions are available under Section 80. You deduct whatever the taxable income you will get will be your taxable income. Then apply this tax slab, find out the tax liability. And if there is any tax paid earlier, deduct that amount. Finally, whatever is your liability will be payable under Section 139 of Income Tax Act. Any doubt to anyone? Based on that, let me take one question. This is how we will be considering salary, house property, business, profession. अभी आपने देखा for the current year. These are the deduction. आपको सिखाया मैंने. ठीक है. These are the tax slab. Suppose this is the question. Mr. Ganesh Bhatt has PAN number so and so, employed. His basic salary 5,000 per month. कौन से हेड्स में आएगा सैलरी? सैलरी में आएगा. TCA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, किधर आएगा? सैलरी. DA, डियरनेस अलाउंस, सैलरी फुल्ली टैक्सेबल. लंच अलाउंस, fully taxable. Medical allowance, children's education allowance. So you must be knowing now it is a repetition what we have learned in salary computation. Yes or no? Same चीज repeat हो रहा है. Yes or no? याद आ रहा है सैलरी वापस आया ना? Yes, sir. Similarly, house rent allowance and deduction. Similarly, bonus taxable, arrear of salary, and so on and so forth. यहाँ तक उसका सैलरी इनकम है. हम तो पहले हमको सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा. आया ना? हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, डिडक्शंस निकालेंगे, है ना? जो हमने सैलरी में सीखा है वही चीज हमने किया है. वन बाय वन आई टेक इट फॉरवर्ड. ये देखिए बेसिक. हम क्या करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं. सैलरी का कितना है, तो अभी मैं जो आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, दीज आर द वर्किंग. ओके. तो पहले आप लोग क्या करेंगे, सैलरी हाउ यू हैव कंप्यूटेड, यू विल हैव टू गेट दैट बेसिक्स प्लस CA, DA, लंच, मेडिकल, सेम जो आपने सैलरी में सीखा था, है ना? यस और नो? Yes. टोटल आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा. मेरे को यही इंपॉर्टेंट है, नेट टैक्सेबल सैलरी. कितना नेट टैक्सेबल सैलरी आया बेटा? हाउ मच यू गॉट? 1,19,700. हमने टैक्सेबल सैलरी ढूंढ लिया सर. हमको टैक्सेबल सैलरी आया 1 लाख. So sir, we got the taxable salary as 1 lakh 9. 1,19,700. Yes, this was my taxable salary. Yes or no?
सिमिलरली आप देखोगे दे हैव गिवन द डिटेल फॉर हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है डिटेल, टिल ईयर इट वाज सैलरी, है ना। अब देखो सारा हाउस प्रॉपर्टी के लिए दिया। ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन मैंगलोर which is occupied by a tenant as resident, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी यू नो LOP लेट आउट प्रॉपर्टी है, रेटेबल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है, रेंट पर मंथ दिया हुआ है, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, याद आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी। इन दिस whichever is high we will take, we will compare whichever is high we will take, arrears of rent we will deduct, that will give us gross annual value. From that municipal tax we will deduct, we'll get net annual value, है ना। And then loan interest we will deduct under section 24, हाँ या ना। So Mr. Ganesh has two source of income, one is salary, another is house property. तो house property को house property की तरह से compute करेंगे, municipal valuation, fair rent, whichever is higher, annual rent, and again annual rent and this whichever is higher is my gross annual value, minus municipal tax, net annual value, less standard deduction, less interest on loan. Income from house property कितना आया, income from house property कितना आया बताओ, tell me. It's negative 10,300, negative आया because this total is 81,300, this is 71, 10,300 negative आया, चलेगा, that can be set off, minus, okay. तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, 1,29,400. अगेन दिस बेसिक फॉर्मेट विल रिमेन सेम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नाउ, सैलरी इनकम नहीं लिखेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, ठीक है। Now see what is given in the question. After this, they have stated Mr. Ganesh has deposited 1,200 for approved pension fund, ATCCC, है ना, and he has also paid for medical insurance premium. Self, wife, cash will not be allowed. Check will be allowed. Okay. Compute the total income and tax liability. तो यही नहीं दिया है, इसके अलावा 80s भी दिए हुए हैं, सेक्शन 80 भी दिया हुआ है ना, हाँ या ना। तो 80cc में कितना इन्वेस्टमेंट है, 12,000, और मेडिकल प्रीमियम में कितना है, 10,500, तो टोटल कितना आएगा, 22,500. तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा बताओ, नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा, 1,06,000, है ना। ये मेरा टैक्सेबल इनकम है, अब मैं टैक्स लायबिलिटी ढूंढने चला हूँ, इसको टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा बताओ, टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा, नील, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। नाउ सपोज मैं इसको 5,06,000 कर देता हूँ, हाइपोथेटिकली मैं समझ रहा हूँ, 5,06,000 कर दिया, फिर क्या होगा,
इसलिए आप देखोगे आपके इस क्वेश्चन में इसका टैक्स लायबिलिटी इज निल। क्वेश्चन के आंसर में मिस्टर गणेश भट्ट का टैक्स लायबिलिटी इज निल। व्हाई? निल। व्हाई? बिकॉज इट इज लेस देन 2,50,000। ठीक है, बट सपोज मैंने आपको अज्यूम कर लिया कि नहीं भाई उसको 5,06,000 मिल रहा है, फिर क्या करोगे? अप टू 2,50,000 मिल, रिमेनिंग 2,50,000 का 5%। एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक है, जीटीआई है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी रिटर्न फाइल करो तो आपको पता होना चाहिए। कितना आएगा बेटा बताओ? 5% ऑफ 2,50,000 अभी बताया था, 12,500 आएगा ना। और बाकी कितना बचता है? 6,900, उसका 20%। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? समझा? इज इट क्लियर? क्लियर सर। थैंक यू। ओके, सपोज ये 15,06,000 हो जाता है, तो अगेन अप टू 2,50,000 इन, रिमेनिंग 2,50,000, 5%, 12,500, रिमेनिंग 5 लाख, 20%, 1 लाख, रिमेनिंग 5,06,900, 30%। हम लोग सब 30% में है, हमारा सबका इनकम मोर देन 10 लाख है। तो सपोज 10 लाख कमाते हैं, 3 लाख गवर्नमेंट को जाता है, हमारे हाथ में से 7 लाख आता है। सोचो, तो टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया बेटा? 2,64,570। अब सपोज इसमें से आपने कोई टीडीएस दिया रहेगा या एडवांस टैक्स भरा रहेगा, राइट, या प्रीपेड टैक्स रहेगा, वो सब डिडक्ट हो जाएगा एंड फाइनली जो होगा दैट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? क्लियर सर। बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टैक्स में। सपोज आपने टीडीएस 10,000 का भरा था, माइनस हो जाएगा। भरा था मतलब मेरे को कॉलेज में जो पे किया था उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, तो मैं उतना टैक्स अभी नहीं भरूंगा। सपोज हमने ज्यादा टैक्स भर दिया, देन टैक्स रिफंड भी आ सकता है, और आता है। So these are the basic fundamentals of income tax computation. Any doubt? Because next week I am going to get only one lecture on Monday. 30th is the last working day. So Monday को जितने भी आपके doubts हैं आप पूछ सकते हो. You are free to ask any doubt. I have completed my syllabus. All the very best for your semester and exam. Okay? तो ये माइनस हो जाएगा। ये सपोज 1 लाख मेरे से ले लिया मेरे कॉलेज ने, मेरे पगार में, और कर ही लेता है, पगार में से डिडक्ट कर देता है वो लोग। तो मैं अभी टैक्स कितने पे भरूंगा? रिफंडेबल भी हो सकता है, ज्यादा भर दिया तो टैक्स रिफंड आएगा, कम भर दिया तो और टैक्स भरना पड़ेगा। मैं टैक्स कितने पे भरूंगा? 1,64,000। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अदर थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। जैसे जैसे छोटे छोटे हेड आपने सीखे उसको सबको टोटल करना है, उससे आपको ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, उसमें से डिडक्शन करना है, टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, फिर स्लैब रेट से आपको टैक्स लायबिलिटी ढूंढनी है,
And after final tax liability, if there is any TDS or advance tax, that has to be deducted. And finally, we are going to get total tax payable or refundable. Okay. Thank you very much for your assistance for extra lectures. God bless you. All of you should clear with flying colors. Till then, be at home. Take care.